A dragon called Tsunami, lesson number 2. Oh, how terrible, terrible, shouted Gombi as he rushed out of his hilltop house shaking with a fear. गोम्बल जो है वो बहुत ऐसे चिल्लाते हुए कितना टेरिबल है ऐसे करके, और उसका जो घर था वो हिल टॉप पर जो घर था वो शेक कर रहा था. द अर्थक्वेक वाज ओवर इन लेस देन अ मिनट. Gombe lived on a very small island off the coast of the main island of Japan. He was quite used to earthquakes, but this time the tremor was very powerful and had lasted longer than usual. Even now, the weird rumbles echoing from the bowels of the earth were really terrifying. जो अर्थक्वेक है वो 1 मिनट में आने वाला है, और गोम्बी जो है काफ़ी छोटे से आइलैंड कोस्ट में रहता है जापान के. वो ही वॉज क्वाइट यूज टू अर्थक्वेक, बट दिस टाइम मतलब हर टाइम वो अर्थक्वेक को इजीली हैंडल कर लेता है, बट ये इस बार जो अर्थक्वेक आया है वो काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी लास्टेड लॉन्गर देन यूजुअल, और काफ़ी टाइम तक इसका असर रहने वाला है. Even now the weird rumbles echoing from the bowels of the earth were really terrifying. और जो रंबल्स और इकोइंग जो बार बार हो रहे हैं जो अर्थ के, वो काफ़ी डरावने हैं. Here is a page number 19. Gombe looked down uneasily at the village nestling below the hill. It seemed that all the people were so busy in their fields preparing for the harvest festival that they had not even noticed the earthquake. Then Gombe looked towards the sea and gaped horror-stricken to see that the wind was blowing in the wrong direction. It was blowing from the land and towards the sea. गॉम्बे जब ऐसे अनइजीली विलेज को देखता है, सारे लोग जो है वो हिल पर आ जाते हैं. दैट द पीपल वर सो बिजी इन देयर फील्ड्स, और सारे लोग अपने फील्ड्स में बिजी होते हैं वो हार्वेस्ट के फेस्टिवल में. दैट दे हैड नॉट इवन नोटिस द अर्थक्वेक, और उन्होंने अर्थक्वेक को नोटिस भी नहीं किया था. देन गॉम्बे लुक टुवर्ड्स द सी एंड गैप्ड हॉरर स्ट्राइकन टू सी दैट द विंड वाज ब्लोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. और सी का जो वाटर है वो पूरा विंड जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, और सी का जो वाटर है वो पूरा ब्लो करके लैंड में आ रहा है. ओ गॉड हेल्प अस, सुनामी इज कमिंग टू डिस्ट्रॉय अस. सुनामी आने वाली है और हमें डिस्ट्रॉय कर देगी. शेड गॉम्बेज वॉज हैवी. Gale wind swept from the shore, hurling the waves away from the beach, waving the sandy waste and black rocks that had been covered by the ocean water. It will swallow the whole village in one gulp, thought Gombe. Rushing into his little house, he ran out again holding a flaming torch of pine wood. और वो बोलता है कि सुनामी जो है हमें डिस्ट्रॉय कर देगी. गॉम्बे इज हैवी गेल विंड स्वेप्ट फ्रॉम द शोर, हर्लिंग द वेव्स away from the beach, revealing the sandy wastes and black rocks that had been covered by the ocean water. और हर्लिंग वेव्स जो है वो रिवल करके वो ब्लैक रॉक्स जो है उसे ओशन वाटर से कवर कर देगी. और ये जो रिवर वाटर है, ये जो सी वाटर है वो पूरा स्वेलो कर देगी एक ही गल्प में हमारे पूरे विलेज को. ऐसा गॉम्बी ने ऐसा सोचा. रशिंग इनटू हिज लिटिल हाउस, और वो दौड़ते हुए अपने छोटे से घर की तरफ गया. He ran out again holding a flaming torch of pine wood. और पाइन वुड टॉर्च को ऐसे हाथ में पकड़ते हुए वो अपने छोटे से घर की तरफ गया. Here is the next page, page number 20. On the hilltop in front of his house lay tall stacks of rice straw piled high, ready to be stored away in his barn. I will lose everything, my house and harvest all will be destroyed. और वो बोलता है कि राइस के जो स्ट्रॉ है वो काफ़ी बड़े हुए थे, और वो ऐसा सोचता है कि मेरा घर जो है, मेरी जो फसलें हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. आई थॉट गॉम्बी बट आई मस्ट सेव द विलेज. मतलब ऐसा सोचता है कि मुझे मेरे विलेज को बचाना है, बिना भले जो भी मुझे कॉस्ट उसमें लगानी पड़े. An agony of pain and fear twisted his stomach, his legs trembled, but his hand was steady as he thrust the fiery torch into the sticks of his rice straw. In a second, the flame caught, the spark leaped up, and frightened fireflies fanned by the sweeping wind. Dry bottle rice sticks crackling, red-hot flames up like fiery tongues hissing, destroying. मीन्स जो राइस स्ट्रॉ थी वो फ्यूरी टॉर्च के
was steady as he thrust the fiery torch into the sticks of rice straw. In second, the flames caught the sparkles flipped up. और जो राइस के जो स्ट्रॉ थी वो जो फ्लेम्स आई और उसमें सब वो जल गया. ड्राई बॉटल राइस स्टिक्स क्रैकलिंग रेड हॉट फ्लेम्स, और उसमें से रेड हॉट फ्लेम्स कुछ ऐसे बाहर निकल गई. नाउ ऑल द स्टिक्स वर अफ्लेम, और सारी जल गई. गाइगेंटिक टॉर्चेस, एक बड़ी सी टॉर्च जो थी. गॉम्बी ड्रॉप द पाइन टॉर्च, और वो उसने पाइन टॉर्च को वहीं छोड़ दिया. फॉर अ मोमेंट ही स्टूड एज स्टिल एज ही वॉज लॉस्ट इन टेरिबल नाइटमेयर. एक मोमेंट के लिए तो ऐसा लगा कि मैं कैसे गंदे से डरावने से सपने में हूँ अभी. वे डाउन एट द विलेज टेम्पल बेल्स पेल्ड आउट लाउडली, और सारे लोग ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लग गए, फायर फायर फायर, गॉम्बीज हाउस इज ऑन फायर. और सब लोग ऐसे चिल्लाते हैं कि फायर फायर, आग लग गई है, गॉम्बी के घर में आग लग गई है. सम यंगस्टर्स अमॉन्ग द विलेज रेज्ड अप द हिल्स, देन केम अदर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन. कुछ यंगस्टर्स थे जो उसके घर को बचाने के लिए आ रहे थे, कुछ गांव वाले थे, उसमें से कुछ औरतें थी और कुछ बच्चे थे और मैन थे, मीन्स कुछ आदमी थे. गॉम्बी however he stared down impatiently. They seemed to be crawling up irritatingly slow like a line of ants. और सारे लोग ऐसे दौड़ते हुए आ गए, चिल्लाते हुए आ गए, और ऐसा लग रहा था जैसे चींटियों की लाइन आ रही है. एटलीस्ट अ ग्रुप ऑफ बॉयज क्लैम्बर्ड अप टू वेयर Gombi was standing, and they started putting out the fire. Gombi roared, leave that alone, call the villagers to come quickly here. और गॉम्बी बोलता है वो सब छोड़ो, सारे गांव वालों को यहाँ बुला दो. विलेजर्स केम मोर एंड मोर, रनिंग, लीपिंग, फॉलिंग एट टू द टॉप ऑफ द गॉम्बीज हिल. गॉम्बी रैन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और गॉम्बी दौड़ते हुए सारे लोगों के सभी लोगों के पास जाता है. शाउटेड आउट देयर नेम्स, और सबके नाम एक एक करके सबको बुलाता है. हैज गॉम्बी गॉन मैड, विस्पर्ड द विलेजर्स टू वन अनदर. सबको ऐसा लगता है कि गॉम्बी जो है वो पागल हो गया है. They stared at his burning house and rice stalks, then at his face. और सब लोग उसके जले हुए घर को और राइस स्टॉक्स को देखते हैं और फिर उसके चेहरे को. Suddenly Gombi turned, shouting with all his strength, look, here comes the dragon. सब लोग इधर देखो. Everyone turned to see where he pointed to place where far distance horizon from a faint line, thin black line seemed to rise, throb in the sky. एक हॉरिजॉन लाइन, ब्लैक लाइन स्काई की तरफ से आ रही है. विद इन अ सेकेंड इट इनॉर्मस, फिलिंग अप द एंटायर स्काई, रशिंग टूवर्ड्स देम एट ट्रेमेंडियस स्पीड. सुनामी, समवन स्क्रीम्ड, और किसी ने चिल्लाते हुए कहा सुनामी आ रही है. बिफोर देयर वेरी आइज द एंटायर ओशन रोज अप एंड अप हायर, touching the sky like a massive black dragon, hurtling upon the beach with a tremendous exploding roar. Up on Gombe's hill, the people leapt back for a few terrifying, blinding moments. Except for the foamy water mist, nothing else could be seen. और एक टेरिफाइंग ब्लाइंडिंग मोमेंट जो है वो आ गया है वाटर मिस्ट का, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. देन दे सॉ द सुनामीज लाइक एन इनसेन अनटेम्ड फोर्स स्विफ्टली वॉलेंटली देयर एंटायर विलेज अगेन एंड अगेन. इट हर्ल्ड ओवर देयर होम्स एंड फील्ड्स. और पूरी जो सुनामी थी वो उनके गांव को और उनकी जो खेत है ट्वाइस थ्राइस वो ऐसे घूमते हुए. Villagers looked the bewildered, staringly dazzling at their devastated village that had been scooped out and flung back by a gigantic wave. The fire of the rice stalks, fanned by the wind, burnt and fled again. It cast the warm red glow on the villagers, making them slowly aware that their lives had been spared only because of it. Humbly, thankfully folding their hands, they bowed before the courageous Gombi. सारे लोग सुनामी को देखते हुए डर जाते हैं, और ये जो जाइजेंटिक वेव जो आती है, गांव वाले सब लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम सब लोग बच गए बिकॉज ऑफ गॉम्बी. और सब लोग हैंड्स फोल्ड करके थैंक यू कहते हैं सबको, सब लोग गॉम्बी को. सो हियर इज अ लेसन नंबर 2 इज फिनिश्ड. मैसेज इज अ हीरो इज समवन हु थिंक्स अबाउट द अदर्स बिफोर थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ. हीरो उसे कहा जाता है जो खुद के बारे में सोचने की बजाय सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचता है. सो दिस स्टोरी इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम जापानीज बाय हेमा पांडे.
So here is a lesson number 2 is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned to learn next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.